Good morning, students. In continuation of linear inequalities, today we are going to discuss modulus inequality. That is a very important concept, you can say. Whenever we are getting a modulus inequality, how we should solve, now we should discuss it today. Okay, so let us start modulus inequalities. y के बीच में x लिख रहे थे, इसको हमने मॉडुलस फंक्शन कहा था और इसकी मीनिंग क्या थी? मीनिंग ये थी कि सपोज वी हैव अ मॉडुलस मशीन एंड इफ वी आर गिविंग इनपुट्स, हमने इनपुट आउटपुट के टर्म में मॉडुलस को डिफाइन किया था, उसको मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं. सपोज वी आर गिविंग द 5 इनपुट, देन वी आर गेटिंग द आउटपुट 5. If we are giving the -5, then also we are getting output 5. It is your input and this one is your output. Means modulus is like a machine. When we operate a number with modulus, that always gives positive. Modulus हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू. मीन्स मॉडुलस क्या देता है? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? जैसे 5 और -5 दोनों केसेस में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5 होगी. अब इसका हम एल्जेब्रिक डेफिनेशन देखते हैं. एल्जेब्रिक डेफिनेशन मींस इफ वी हैव mod x, then it can give value x, also can give value -x, and it can also give the value 0. x का वैल्यू देगा when x is more than 0. 0 वैल्यू कब देगा? x equals 0 पे. और -x का वैल्यू देगा when x is less than 0. तो mod x तीन वैल्यूज, there are 3 possibilities to give the values, either plus x or 0 or minus x, depending on input. If we are giving input more than 0, then it gives you plus x. If we are giving input 0, then it gives you 0. If we are giving input x less than 0, then it is given minus x. इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें, जो कि आपके बुक्स में लिखा रहता है, that is simply mod x can be defined as x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0. Means that is the algebraic definition of mod x. Suppose if we have 7, then we should write 7. If we have -8, then what the definition says, we should write it like that. Minus times -8, that gives you the 8. And if somewhere it is 0, then we write 0. Means if we have a negative value, then the solution should be the minus times that negative value. Then it gives you positive. इसीलिए mod फंक्शन ये दो डिफिनेशन दे रहा है, x और -x देता है, इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकते हैं mod x equals to plus minus x. That is known as double definition of modulus. इस डिफिनेशन को हम डबल डिफिनेशन कहते हैं. डबल डिफिनेशन इसलिए है कि ये कंडीशनल है. पॉजिटिव x और माइनस x दोनों वैल्यूज आएंगे डिपेंडिंग ऑन इनपुट. नेक्स्ट, अनदर डिफिनेशन इज also can be given modulus is distance from origin. मॉडुलस क्या शो करता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन शो करेगा. कैसे? अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. सपोज वी हैव x equals to 5.
Okay, so when you substitute means it gives you plus minus x equals to 5, means x equals to plus minus 5, means if we are giving the input 5 then the result is 5, if we are giving input minus 5 then it also gives 5. And if we want to represent one number line, then we can represent it as, suppose here is the 0, here is the 5, and this one is the minus 5, so we should write the value 5 and minus 5 in this way. Okay? Now we are going move further. We are taking now inequality. Suppose we have mod x is greater than 5. What? We are taking mod x greater than 5, and also we said take mod x is less than 5. What does it mean? Now, as we said, modulus gives the distance from the origin. Modulus is the distance of a point from origin. Distance मान रहे हैं, तो distance के लिए कैसे देखेंगे? If we have mod x greater than 5, then how is to represent on number line? It is suppose number line. Here is the minus infinity, here is the plus infinity, and somewhere we locate minus 5 and 5. This is your origin. Origin को हम reference frame of reference भी कर सकते हैं. Frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए हम इस ओरिजिन से कंपेयर करेंगे कि 5 कहां पे है. जैसे हमने बताया था कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या शो करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन शो करेगा. अभी वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी हमें वैल्यू लेनी है, तो 5 से बड़ी वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रीजन बनेगा 5 को नहीं लेना है, यहाँ पर लेने के लिए 5 को हम ओपन लिख के इस तरीके से ये वाला रीजन जो बना आपका, ये 5 greater than 0. अगर हमने कोई वैल्यू -6, -7, -8 लिया और इस इनइक्वालिटी में रख दिया, तो -7 अगर आप रखते हो तो -7 mod of -7 gives you 7, तो 7 greater than 5 होता है. इसलिए हम इस रीजन को भी लेंगे, या आप इस डिफिनेशन से स्प्लिट कर सकते हो. हमने बताया था mod x always gives plus minus x, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा. तो इस रीजन को, ये जो रीजन बन रहा है हमारा इधर वाला रीजन, दैट इज द these two reasons are solutions. We can say कि x belongs to minus infinity to 5 minus 5 union of 5 to infinity. Here not equal sign, so we should exclude these 2 points. That is your solution. If we say solution, then solution is this one. Now we see the case of mod x less than 5. If we are taking this one, then again represent on number line. Same situation is there. Here suppose -5 is there. Here is the 5 and somewhere it is 0. So move from here to there. यहां से यहां तक हम मूव कर सकते हैं, यहां से इसके बीच में वैल्यू जो होगी आपकी, कोई भी वैल्यू लेंगे इनइक्वालिटी होल्ड करती रहेगी. मींस mod x less than 5, what does it represent? The distance should be the less than 5. The distance is less than 5 means either we should take the distance from the right side or from the left side. दोनों तरफ से डिस्टेंस ले सकते हैं. ठीक है, जैसे आप एक चीज मान सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिन में हमने मान लीजिए रेफरेंस ले लिया, 5 डिस्टेंस हमें मूव करना है, तो वी कैन मूव इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन लेफ्ट डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको देखना होगा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेफरेंस में हम दोनों साइड मूव करेंगे. ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा x belongs to -5 to 5. ठीक है, तो इससे हम इन दो इनइक्वालिटी से एक कंक्लूजन पे आ गए कि s is
greater than or equal to a. If then the equal sign means that means it is your slack inequality. In case of slack inequality, we should write the solution x belongs to minus infinity to a, including a union of a to infinity in this way. And if it is mod x is less than or equal to a, then we write x belongs to minus a to a, closed interval minus a to a. As we have already discussed, these two inequalities greater than less than is your strict inequality. strict inequality थी और ये आपका greater than or equal to or less than or equal to is your slack inequality. Strict inequality के लिए we should try to write in this way, open interval, and for strict inequality we should use the closed interval. ठीक है, इंटरवल पे हमने डिस्कशन किया था। इस चीज को आप ध्यान देना कि बाउंड्री पॉइंट को लेना है कि नहीं लेना, दैट डिपेंड्स ऑन दिस टर्म. If it is equal sign, then you have to take the boundary points. Now we are going to discuss few questions. Okay, in that questions we should follow the critical point method. That is very easy method, and if you one time understood, then whatever be the inequality you can easily solve it. Nothing is to learn in that. Okay, आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है कि कब प्लस लिखा जाएगा, कब माइनस लिखा जाएगा, कब लेस देन लगाएंगे, कब आप एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करना है. जैसे हमने पहले क्रिटिकल पॉइंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वही सेम पैटर्न वी शुड फॉलो इन द मॉडुलस इनइक्वालिटी. क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व mod of 3 minus 4x is greater than or equal to 9. Solution. That is your slack inequality. So when we get the solution, we should discuss about this. Okay. Now the procedure is that for critical point we need to make the right side 0. So we should write it as 3 minus 4x minus 9 is greater than or equal to 0. Now critical point, for critical points we need to equate this equal to 0. So we should write in this way, mod 3 minus 4x minus 9 equals to 0. हम critical point निकालने के लिए इनइक्वालिटी जो भी दी हो पहले हम इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करते हैं. अभी हमने पढ़ा था कि मॉड्यूलस जब स्प्लिट होगा तो बाय द डबल डिफिनिशन इट गिव्स यू टू वैल्यूज, पॉजिटिव 3 minus 4x and also negative 3 minus 4x. So we should use plus minus both the sign. Minus 9 equals to 0. Now taking the positive, if we are taking the positive then that gives you 9 equals to 0. So minus 4x minus 6 equals to 0. So x becomes minus 6 by 4. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. Now when we cancellation that gives you minus 3 by 2. एक वैल्यू आपकी minus 3 by 2 आ रही है. दूसरी वैल्यू के लिए taking negative that gives you minus 10, 3 minus 4x minus 9 equals to 0. So when we solve it gives you this, and after simplification we can get 12 equals to 0. So x equals to 3. So we are getting two values. One value is minus 3 by 2 and second value is 3. Now plot on line that we are treating it as minus infinity, here is infinity, and it is minus 3 by 2. Suppose it is your minus 3 by 2 and this value is 3. So now we get the three regions 1, 2, 3. So we have to discuss these three regions where we should make positive sign and where negative. So we should choose the random point. -3.2 से छोटी वैल्यू लेनी है तो -2 -3 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं.
सपोज वी आर टेकिंग द -2, -2 को लेकर आपको कहाँ रखना है, इस वाले रिलेशन पे रख के चेक करना है साइन क्या है। सपोज वी आर टेकिंग द -2, सो व्हाट वी विल गेट 3 - 8, इट गिव्स यू 3 + 8, -4 into -2 that is +8, so 8 3 11, we are getting modulus 11 -9, 11 - 9 that is +2, so we are getting the positive here, so we should make here positive like that। -3.2 से 3 के बीच में कोई भी पॉइंट रखना है, -3.2 से 3 के बीच में बहुत सारे पॉइंट आएंगे, we should take the 0 भी एक पॉइंट आएगा, 0 लेते हैं, x = 0, x = 0 आप रखते हो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 3 - 0 that gives you 3, 3 - 9, 3 - 9 -6, so we are getting the negative value, so this reason is negative। and now substitute a value more than 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं, 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। सपोज वी आर पुटिंग द 5, so 3 - 20 it becomes -20, 3 - 20 becomes -17, -17 का मॉडुलस है इसलिए ये 17 हो जाएगा। इस साइन को आप ध्यान रखना है, यहाँ मॉडुलस लगा है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। we are getting +17 -9 that again gives you positive value, okay, so we should make here positive sign like that। so now which reason we have to take, that is greater than or equal to 0, हमें पॉजिटिव रीजन लेना है, इंक्लूडिंग 0 लेना है, इंक्लूडिंग 0 का साइन ये शो करेगा, हमें बाउंड्री पॉइंट्स को भी लेना होगा। सो सॉल्यूशन इज x belonging to -∞ to -3/2 including, and union of next point is to 3 to infinity। Here 3 and -3/2 we included it, so for that we use this close bracket, that is close bracket, that is open। पॉइंट को अगर लेना है तो क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं और अगर नहीं लेना है ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व mod x - 1 upon mod x - 2 greater than or equal to 0, x belonging to r and x is not equals to +-2। इसको इसलिए लिखा है कि डिनोमिनेटर का फंक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब भी कोई चीज लिखी जाती है डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन दिया गया है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। इट इज इन फॉर्म ऑफ a/b, सो इट इज योर फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी है। फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी के लिए हमने आपको बताया था कि हम अलग अलग न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले mod x - 1 को 0 करना होगा और mod x - 2 को भी 0 करना होगा। इसको 0 करेंगे, ax = we are getting 1 and here we are getting 2, so it gives you ±x = 1 और ये भी वैल्यू ±x = 2, so we can write it as x = ±1 and it gives also ±2। तो दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, मींस सॉल्यूशन लिखते समय हमें दोनों पॉइंट्स को लेना होगा। आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, सपोज इट इज योर नंबर लाइन, हियर इज द -∞, दिस वन इज द +∞। नाउ वी नीड टू लोकेट द पॉइंट्स -1 1 2 2 and one point is more, that is -2, and suppose here is the positive values, okay। so see, now we have total 4 points, -2 -1 1 2, so we should take one by one and by taking random point we should discuss the reason, either it is positive or negative। suppose we are taking a point less than -2, -2 से छोटी कोई भी वैल्यू लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग -3, तो -3 को कहां रखना है, यहां रखना है। तो -3 का मॉड क्या होगा, 3 3 - 1 दैट इज पॉजिटिव, 3 - 3
mod -2 इज आल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ -3 यहाँ दोनों जगह रखने पे पूरी इनइक्वालिटी जो है ये पूरा एक्सप्रेशन है a by b पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। -2 और -1 के बीच में -1.5 लेते हैं, तो -1.5 जब रखते हैं तो यहाँ न्यूमरेटर में 0.5 आएगा और डिनोमिनेटर में -0.5 आएगा, तो पूरे फ्रैक्शन को नेगेटिव कर देगा, मींस ये रीजन आपका नेगेटिव हो जाएगा। -1 के बीच में सबसे इजी पॉइंट है 0, we should substitute 0 when we are putting the 0 it is -1 upon -2, that is again becomes this fraction positive। again take point between 1 and 2 के बीच का पॉइंट लेना है। सपोज वी आर टेकिंग 1.5, for 1.5 numerator should be the positive but denominator should be the negative, so whole expressions become negative। now more than 2, if we are taking a point more than 2 like 5 को रखेंगे, न्यूमरेटर पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आएगा, so whole region becomes positive। so now we should care what we have to take। we have here inequality that is greater than or equal to 0, so we should going to write the solution। so solution should be x belonging to, हमें पॉजिटिव रीजन लेना है, तो पॉजिटिव रीजन लेने से पहले हम बाउंड्री पॉइंट को भी केयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लैब इनइक्वालिटी है, तो -2 और 2 को नहीं लेना है, तो -2 पे हम ओपन सर्कल और 2 पे भी ओपन सर्कल बना देंगे। इसके बाद -1 और 1 हमें लेना है, क्योंकि -1 और 1 रखने पे इक्वलिटी 0 हो जाएगी और 0 हमें लेना है। जहां 1 रखेंगे या -1 रखेंगे न्यूमरेटर 0 होगा, न्यूमरेटर 0 मींस ये पूरी वैल्यू 0 की इक्वल हो रही है, यहां इक्वल साइन लगा है, इसलिए हमें इन दोनों पॉइंट्स को लेना है। -1 और 1 को हम डाल सकते हैं। so solution should be now x belongs to -infinity to -2, -2 को नहीं लेना है, ओपन इंटरवल यूनियन ऑफ -1 और 1 दोनों को इंक्लूड करना है, इसलिए we should take the close interval -1 to 1 union of next point is your 2 to infinite। 2 को नहीं लेना है, तो 2 पे ओपन ब्रैकेट और इनफाइनाइट ये सब ओपन रहता है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो जब भी फ्रैक्शनल इक्वलिटी आएगी तो दोनों न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को लेके हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग अगेन सेम पैटर्न, दैट इज फ्रैक्शनल इक्वलिटी। ये क्वेश्चन हम और कर रहे हैं इसी में। क्वेश्चन 3, सॉल्व mod of x plus 3 minus 2 upon x plus 2 greater than 0। ये भी आपकी फ्रैक्शनल इक्वलिटी है। अभी जैसे सॉल्व किया है फिर से हम उसे करेंगे, हमें ये पूरे फ्रैक्शन को लेना है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट मेथड सबसे बेस्ट मेथड होगा। अगर आप इससे यूज करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन एक जैसे ही चलते हैं। अभी हम क्रिटिकल पॉइंट से सबसे पहले न्यूमरेटर को 0 करेंगे और डिनोमिनेटर में भी x plus 2 है, इसलिए इसी को 0 करते हैं। तो इसको जब 0 करेंगे यहाँ पे 2 साइन आ जाएगा, x plus 3 minus 2 equals to 0, so it gives you what we have here। we have x plus 3 minus 2 equals to 0, this implies x equals to we get -1, and when we take negative of x plus 3 minus 2 equals to 0, this gives you -x minus 2 minus 2 equals to 0, so it gives you x equals to -5, and when we take this that gives you x equals to -2, so we are getting 3 points, -1 -2 -5। so now make a number line, suppose it is your number line and we are going to write the values here। suppose somewhere -5 is there, -2 -1 like that, ठीक है। आपने जो पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स को रख लिया। अब हम वैल्यूज रैंडम वैल्यूज लेके रीजन डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। सपोज समवन टेक्स द वैल्यू -6 लेस देन -5 से छोटी -6 वैल्यू रखते हैं। -6 यहां रखेंगे तो क्या होगा, -6 + 3 दैट गिव्स यू 3, ओके।
मॉडुलस साइन इज में 3 आ जाएगा। 3 माइनस 2 करेंगे तो आपका रीजन क्या आ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 इज पॉजिटिव। नीचे क्या होगा, माइनस 3 प्लस 2 करेंगे निगेटिव आ जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक भी साइन अगर निगेटिव आ रहा है तो फोर्थ फ्रैक्शन निगेटिव हो जाता है, इसलिए ये रीजन आपका निगेटिव आ रहा है। नाउ टॉक अबाउट -5 टू -2, -5 और -2 के बीच में सपोज वी आर पुटिंग -4, -4 रखते हैं, क्या होगा, -4 + 3 गिव्स यू -1, -1 का मॉड 1 हो जाएगा, 1 - 2 मींस -1 आ रहा है। नीचे क्या आएगा, -4 + 2 दैट गिव्स -2। न्यूमरेटर भी निगेटिव, डिनोमिनेटर भी निगेटिव, दोनों निगेटिव जब रहेंगे तो होल रीजन शुड बी द पॉजिटिव इन दिस वे, ठीक है। ऐसे ही -2 और -1 के बीच में सपोज वी आर पुटिंग द वैल्यू -1.5, -1.5 जब रखेंगे ये वैल्यू आपकी 1.5 आएगी, 1.5 - 2 गिव्स यू -0.5 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में +0.5 आएगा, तो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। -1 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखते हैं, सपोज वी आर पुटिंग 0, 0 पे क्या होगा, 3 - 2 दैट गिव्स यू 1 एंड हियर 2, सो इट बिकम्स पॉजिटिव। ये पैटर्न आप ध्यान रखना कि ये हमेशा इसी क्रम में नहीं आएगा कि निगेटिव आ रहा फिर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव, कई बार ये चेंज भी हो जाता है, कई बार लगातार 2 पॉजिटिव या 2 निगेटिव आ जाते हैं। आप 12th में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हाँ ऐसे केसेस आ सकते हैं कि आप कोई इसको रटने की कोशिश मत करना, जैसा आएगा, जो नेचर आ रहा है, निगेटिव पहले आ रहा है निगेटिव लिखना है, पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव लिखना है, जैसा आपके रैंडम वैल्यूज रखने पे आउटपुट जैसा आ रहा है पॉजिटिव या निगेटिव आपको उस तरीके से लिखना है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन, हेंस सॉल्यूशन में यहाँ पे इनइक्वालिटी आप देख सकते हो, ये इनइक्वालिटी आपकी कैसी है, स्टिक इनइक्वालिटी है। तो स्टिक इनइक्वालिटी में किसी भी बाउंड्री पॉइंट को नहीं लेना होता है, इसलिए जो भी बाउंड्री पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट को हमें नहीं लेना है, सारे बाउंड्री पॉइंट छूट के। तो सारे बाउंड्री पॉइंट छूटने के बाद लेना क्या है, ग्रेटर देन 0 लेना है, मींस वी हैव टू टेक द पॉजिटिव रीजन। तो पॉजिटिव रीजन के लिए x बिलोंग्स टू पॉजिटिव, यहां से आ रहा है -5 से लेके -2 तक और यूनियन ऑफ -1 से लेके इनफाइनाइट तक। जब 2 रीजन पॉजिटिव आ रहा है तो हम मिडिल साइन यूनियन का लेंगे, मींस दोनों इंटरवल को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम मॉडुलस इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अभी मुझे आशा है आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और कर रहे हैं जिससे पूरी मॉडुलस इक्वालिटी आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगी। सॉल्व mod x - 2 lies between 1 and 3 including 1 and including 3। यहाँ पे इक्वल साइन मींस बाउंड्री पॉइंट को भी इंक्लूड करना है। ये डिफरेंट टाइप की इक्वालिटी है जिसमें दोनों तरफ बाउंड्री दिए गए और बीच में मॉडुलस फंक्शन दिए गए। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। As we did earlier, write it as 1 is less than or equal to mod x - 2 and mod x - 2 is less than or equal to। इसको हम 2 अलग-अलग पार्ट में लिख देते हैं। इक्वालिटी हमारी हो गई, इसको अगर प्रॉपर वे में लिखेंगे x - 2, पहले हम वेरिएबल को कर लेंगे, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड इट शुड बी द x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। इस टाइप से हमने दोनों इक्वालिटी को ब्रेक कर दिया। अब हमने प्रोसीजर क्या पढ़ा था कि लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू अगर राइट में रहे उसको लेके 0 बना लेते हैं राइट से एंड this should be mod x - 2 - 3 is less than or equal to 0। यहाँ पे एंड साइन इसलिए आ रहा है कि हमें ये जब वैल्यूज बाउंड्री पॉइंट पे लिखी होंगी, मतलब ये भी लिखना है ये भी लिखना है, और जो दोनों इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वालिटी और इस इक्वालिटी, दोनों इक्वालिटी को जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा उस सॉल्यूशन रीजन को हमें लिखना होगा। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम प्रोसीजर वही फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले हम x - 2 - 1 को 0 कर देंगे। इसमें भी सेम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, x - 2 - 3 को 0 की कर देंगे। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम प्लस माइनस यूज करते थे,
मॉडुलस हटा प्लस माइनस साइन लगेगा, इसमें भी प्लस माइनस साइन लगेगा। अब इसको एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव लेने पे क्या होगा कि इट गिव्स यू x - 2 - 1 = 0, दैट इंप्लाइज x = 3 वैल्यू। और अगर आपने नेगेटिव लिया तो इस केस में क्या आएगा -x + 2 - 1 = 0, दैट इंप्लाइज x = 1। आप इसको सॉल्व करेंगे 2 - 1 दैट इज 1 -x equals +1 = 0, so x becomes 1. Same way we should solve this x - 2 - 3 = 0, that implies x = 5 आएगी वैल्यू। और दूसरी वैल्यू हम माइनस साइन ले रहे हैं -x + 2 - 3 = 0, this implies here -x - 1 = 0, so x becomes your -1। तो हमें एक सॉल्यूशन इससे आ रहा है, एक सॉल्यूशन इससे आ रहा है, दोनों को हमें सॉल्व करना होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो पहला नंबर लाइन फर्स्ट वाले के लिए पॉइंट्स आर 1 and 3, so suppose somewhere it is 1 and it is your 3, 1 3 वैल्यूज ले रहे हैं और अभी हम पहले फर्स्ट को सॉल्व करना है, इसको नंबर लाइन में लिखना है। तो हमें 1 और 3 क्रिटिकल पॉइंट आया था, 1 3 लिख दिया। अब हम रीजन देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है कहां पे। तो हमारी इक्वलिटी क्या है, हमारी इक्वलिटी ये है, ये वाली लेके चल रहे थे हम। सबसे पहले हम 1 से छोटी वैल्यू कोई भी रखते हैं, 0 सपोज या -1 -2 कोई भी वैल्यू रखना है, इसके लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो 0 अगर रखोगे -2 का मॉड क्या होता है 2 होगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो दैट गिव्स यू पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव 1। सो इधर का रीजन हमारा पॉजिटिव आ रहा है। 1 और 3 के बीच में सपोज वी आर सब्स्टिट्यूटिंग 2, तो 2 - 2 दैट मेक्स 0, 0 आ गया और ये -1 आ गया, तो -1 वैल्यू आ रही है लेफ्ट में, मींस इट इज योर नेगेटिव। हमें कोई भी वैल्यू उनके बीच में रखना होता है। सपोज समवन पुट्स 1.5 भी रख सकते हो, 1.5 रखोगे -0.5 आएगा, -0.5 का मॉड 5.5 होगा, 0.5 -1 करेंगे आगे भी आगे नेगेटिव। तो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आ रहा है उस रिजल्ट को देखना है। नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू मोर देन 3 से बड़ी वैल्यू 4 रखते हैं, तो 4 पे क्या होगा 4 - 2 दैट गिव्स यू 2, तो मॉड 2 बन जाएगा, 2 - 1 दैट गिव्स यू अगेन +1। सो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। सो इसका सॉल्यूशन क्या दिखा रहा है x belonging to -∞ to 1 को हमें लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ पे इक्वल साइन से डिसाइड होता है, तो ये 1 को हमें लेना है। यूनियन ऑफ दूसरा क्या दिखा रहा है पॉजिटिव रीजन 3 को भी लेना है क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड करना है 3 से ∞। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये आपका +∞ है और ये -∞। ऐसे ही सेम वे में राइट साइड को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। राइट साइड में वैल्यूज क्या आ रही थी, it is your -∞, it is your +∞, and suppose we are having the values -1 and 5, here it is -1 and it is your 5, so -1 5 ये वैल्यूज को हमने लिया है इसलिए आप डार्क कर सकते हैं। अब -1 से छोटी वैल्यू, कोई भी -1 से छोटी वैल्यू, सपोज -2 ले रहे हैं, तो -2 को रखना है इस वाली इक्वलिटी में रखना है, तो -2 -4 आएगा, और लगा है 4 हो गया, 4 - 3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रीजन आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। और -1 से 5 के बीच में कोई भी पॉइंट सपोज 4 रखते हैं, तो 4 - 2 दैट गिव्स यू 2 पे मॉड लगा है 2 ही होगा, 2 - 3 दैट इज अगेन नेगेटिव, ये नेगेटिव रीजन आ रहा है। 5 ऑनवर्ड, 5 से बड़ी वैल्यू 6 रखते हैं, 6 - 2 दैट गिव्स यू 4 - 3 अगेन गिव्स यू पॉजिटिव। So we plot -1 5 and now we get the region positive from -∞ to -1, negative from -1 to 5 and again positive from 5 to infinity. Now we have to focus which region we have to take. For that we again come to this inequality. Here it is written less than or equal to 0, means we have to take the values lying below the 0, means negative रीजन लेना है। Therefore solution हो जाएगा x belongs to -1 और 5 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए हम इनको
इस तरीके से -5 -1 और 5, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन लिखा है, दैट इज योर स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी में बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करना होता है, और ये करने से हमारा रिजल्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इनको लेंगे। अब इन दोनों को कॉमन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन सॉल्यूशन क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एंड लगा है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। हमें उस रीजन को लेना है जो दोनों इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। इसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। सपोज वी हैव अ नंबर लाइन हियर, इट इज -infinity, it is infinity, and write all points. So first of all we should write negative point, that is here -1. So we should mention here it is -1, and after that 1, suppose here is 1 and here is somewhere 3 and here is the 5, like that. अब हम सॉल्यूशन को लिख रहे हैं। 1 को 1 से इंफिनिटी, -infinity से 1 लेना है, तो -infinity से 1 का रीजन हम ऐसे लिखा देते हैं। 1 को लेना है, इसलिए हम 1 को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज 3 to infinity, 3 to infinity 3 को लेना है, 3 से लेकर infinity तक। इस तरीके से नंबर लाइन के जस्ट ऊपर दिखाते हैं, नंबर लाइन के ऊपर लेके नहीं करते, थोड़ा सा ऊपर हम लिख के दिखाते हैं। और नेक्स्ट रीजन ये -1 से 5, -1 को भी लेना है और 5 को भी लेना है, और इनके बीच का रीजन को भी लेना है। ठीक है, नाउ वी ड्रा बोथ द सॉल्यूशन। नाउ कम टू द कॉमन सॉल्यूशन। इफ वी कम टू द कॉमन सॉल्यूशन, दिस पोर्शन इज गोइंग टू कॉमन इन बोथ। ये पोर्शन आपका कॉमन होने जा रहा है, ये भी कॉमन होने जा रहा है, तो हम कॉमन रीजन जब लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन should be x belonging to -1 से 1 union of 3 to 5. This is your solution, and if you want to verify this solution is your right answer or not, just take random points and put in this inequality. कि इस इनइक्वालिटी में आप रख दो, ये इनइक्वालिटी होल्ड करती रहेगी। जैसे आप सपोज करो -1 1 के बीच में हमने 0 लिया, 0 यहाँ रखते हुए क्या वैल्यू आ जाएगी? -2 आएगा, -2 और 2 हो जाए, 1 3 के बीच में नहीं करता है, सही हो रहा है। अगर आपने कोई पॉइंट यहाँ से 3 5 के बीच में उठाया, 4 रखा, 4 रख रहे हैं, 4 -2 क्या आएगा? 2 आएगा। 2 की वैल्यू 1 और 3 के बीच में नहीं करती है। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट लेके आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है सही है या गलत है। ठीक है, तो एक डिफरेंट टाइप की और हम इक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज योर लास्ट। सॉल्व मॉडुलस x + 1 + mod x > 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए वी शुड यूज क्रिटिकल पॉइंट मेथड फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं बताया था आपको लेफ्ट में इसको राइट साइड 0 बनाना होता है। सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, इस तरीके से हम लिख लेते हैं -0। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी शुड इक्वेट पुटिंग mod x + 1 + mod x - 0 इक्वल 0 करके हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो अब मॉडुलस की डिफिनीशन को यूज करोगे तो ±x + 1 यहाँ आएगा, यहाँ पे भी ±x - 0। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, तो हमारे पास 4 रिलेशंस बन सकते हैं। दोनों को प्लस लिया जा सकता है, इसको माइनस लिया, दूसरे को प्लस लिया, या इसको हमने प्लस लिया, यहाँ माइनस लिया, या दोनों को माइनस लिया जाए। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर हम इस पॉसिबिलिटीज पे चलते हैं तो रिलेशंस क्या बनेगा? पहला रिलेशन होगा x + 1 + x - 3 = 0। दिस इंप्लाइज व्हाट वी गेट 2x - 2 = 0 मींस x = 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वी टेक दिस नेगेटिव साइन -x -1 हो जाएगा, प्लस x -3 = 0। This implies now this x cancel out, so we are getting -4 = 0. That is not possible, so you should not possible. We should write it as not possible. -4 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये इसलिए ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती है। Now come to the positive. This is your positive, and again second one is the negative.
So again it cancel out and it implies minus 2 equals to 0. That is also not called, means not possible. ये पॉसिबल नहीं होंगे या ये फॉर्म नहीं लेंगे. Now come to the both the negative. We are coming to both the negative. We are getting minus x minus 1 minus x minus 3 equals to 0. So when we solve this inequality, we are getting minus 2x equals to 4. So this implies x equals to minus 2. Just when we solve, we are getting minus 2. तो अब आप इन पॉइंट्स को लेके क्रिटिकल पॉइंट ये दोनों एक्सिस्ट ही नहीं किए थे, केवल एक वैल्यू minus 2 आ रही है, दूसरी 1 आ रही है. Now critical points we get x equals to minus 2 and 1. अब इनको नंबर लाइन प्लॉट करेंगे. It is your minus infinity, here is the plus infinity, and somewhere we take here minus 2 and here 1. तो रीजन में आप वैल्यू रख के देखेंगे कि कौन सा रीजन पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा नेगेटिव आ रहा है, जैसे हमने पहले किए थे. माइनस 2 से कोई भी छोटी वैल्यू, सपोज माइनस 5 लेते हैं. माइनस 5 हमें कहाँ रखना है, इस वाले रिलेशन में रख के चेक करना है इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. तो माइनस 5 रखेंगे, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 आएगा. माइनस 4 का मॉड क्या हो गया, 4 हो गया. यहाँ पे माइनस 5 का मॉड 5 रहेगा. तो 4 प्लस 5 9, 9 इज ग्रेटर देन 3 होता है. या आप ऐसे कहो कि लेफ्ट में हमारा पॉजिटिव आ रहा है. माइनस 2 और 1 के बीच में सबसे इजी पॉइंट है 0. वी शुड पुट द 0. 0 रख के देखते हैं तो 0 प्लस 1 आएगा और यहाँ पे 0 हो चुका है. तो 1 आपका 1 इज ग्रेटर देन 3 होता है क्या, नहीं होता है. मींस 1 इज ग्रेटर देन 3 नहीं होता है, या ये इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है. या यहाँ ना रख के यहाँ भी रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ भी रख सकते चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका रीजन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं. अभी हमने 0 रखा था, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1. 1 प्लस 0 दैट इज अगेन 1 प्लस 0 माइनस 3 दैट इज गिवन यू minus 2. minus 2 इज ग्रेटर देन 0 होता है. minus 2 हो रहा है, minus 2 पे हमारा क्या वैल्यू बन रही है, नेगेटिव बन रही है. अभी हम केवल इतने में रख के चेकिंग करते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. फिर रीजन बाद में डिसाइड करते हैं. अदरवाइज यू शुड मेक कंफ्यूजन, चाहे इसमें आप रखो चाहे इसमें रखो. ठीक है, वैल्यू रख के हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव रीजन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. नाउ वी कम टू द मोर देन 1 से बड़ी वैल्यू सपोज 5 रखते हैं. तो 5 प्लस 1 6 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. 6 प्लस 5 11 हो जाएगा. 11 माइनस 3 दैट इज अगेन 8 इज द पॉजिटिव नंबर. सो वी शुड मेक हियर पॉजिटिव. केवल आप लेफ्ट में वैल्यू रख के पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड किया करो, क्योंकि हमने ग्रेटर देन 0 बना रखा है. अब हमें ये शो करता है हमें पॉजिटिव वाला लेना है, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. आप जो भी पॉइंट आता है उन पॉइंट को, ये जो रिलेशन आपका बना है क्रिटिकल पॉइंट वाला, इसमें या जो आपकी इक्वालिटी बनी है ग्रेटर देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, उसमें रख के हम पॉजिटिव और नेगेटिव बस देखते हैं. तो अभी हमारा पॉजिटिव रीजन ये आ रहा है, ये आ रहा है. हेंस solution we can write x belongs to minus infinity to minus 2. लेना है कि नहीं लेना है, कैसे डिसाइड होगा. यहाँ पे आपकी इनक्वालिटी जो है स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है. स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी में बाउंडेड पॉइंट्स को नहीं लिया जाता, इसलिए हम ये कर सकते हैं इस पॉइंट को भी नहीं लेना है, इस पॉइंट को भी नहीं लेना है. -2 यूनियन ऑफ 1 to infinity दैट इज योर आंसर. ठीक है, इस तरीके से हम इनक्वालिटी को, मॉडुलस इनक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे. मैंने कुछ क्वेश्चंस आज किए हैं और मैं इसी कंटिन्यूएशन में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसको आप सॉल्व करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं. आप मेरे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना. ठीक है, मैं अभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ. सॉल्व फॉलोइंग गिवन इनक्वालिटीज. इस टाइप की हमने 8 इनक्वालिटीज लिखी हैं और इसमें हर टाइप की आपकी मॉडुलस इनक्वालिटीज हैं. ठीक है, तो आप इन सारे इनक्वालिटीज को सॉल्व करिएगा और
कमेंट बॉक्स में, वीडियो के लास्ट में जो कमेंट बॉक्स रहता है उसमें आप कमेंट करके बताइएगा आपके सॉल्यूशंस निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहा है, या आपको क्या डिफिकल्टी आ रहा है। अगर मुझे पता चलेगा तो आई विल ट्राई टू रिमूव दीज डिफिकल्टीज। ओके, सो you should sure solve these questions, and I am sure if you solve these all, then definitely you should be able to solve any type of inequalities. Okay, so you should must solve it. Now one more request I would like to say you, please give like to my videos and subscribe my channel so that you can get more advantage from me. Okay.